कि इस बुक लॉन्च के लिए सीए हनुमंत राव जी के इस प्रोग्राम में 3 गणमान्य अतिथि भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने काम से पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर ऐसे विशिष्ट लोगों का होना सोने पे सुहागा जैसा। हनुमंत राव जी, आपका दिन आ गया। 18 अक्टूबर 2020, know your balance sheet is going to be launched finally. How are you feeling? Feeling very great. I am waiting for this day. And welcome all our chief guests and Yes. our families and clients. Thank you very much. Yes, absolutely, absolutely. आपके इस बुक लॉन्च पर गांधी जी की वो पंक्तियां जो आपने अपने किताब में भी शुमार की हैं, उसको पढ़ना चाहूंगा मैं कि अगर आपका थॉट्स पॉजिटिव है तो आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे। आपके अगर वर्ड्स पॉजिटिव हैं तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा। आपके अगर बिहेवियर पॉजिटिव है तो आपकी हैबिट्स पॉजिटिव होगी, और अगर आपकी हैबिट्स पॉजिटिव है तो आपके वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, और अगर आपके वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आपकी जिंदगी में, आपकी डेस्टिनी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। आपने ये जो पंक्तियां लिखी हैं गांधी जी की, वास्तव में आपके व्यक्तित्व को, आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बताती हैं, कहां से आपने इंस्पिरेशन लिया। और इस खास मौके पर आज हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनको बारी बारी से मैं चाहूंगा कि आपकी एसोसिएट, हमारी दोस्त को होस्ट सीएस सुकन्या हालियाल, उनको आमंत्रित करें, उनका सम्मान करें और हम सभी लोगों से उनका परिचय करवाएं। ओवर टू यू सुकन्या। Thank you, Gaurav sir. Thank you so much. First of all, I welcome all of you on this joyous occasion of book launch of CA Hanumantrao Chaudhary sir, or I would say online book launch. I'm sure this book is going to be a hit and a bestseller, and it will help all the entrepreneurs, SME to a great extent. ये इस अनोखे मौके पे मैं एक शेर कहना चाहूंगी। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, मगर खुदा करे सारा जहां हो आपका। I congratulate CA Hanumantrao Chaudhary for this book once again. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। And today it is great honor for me to introduce and welcome all our dignitaries. Today we are blessed with not only one, but 2 great personalities with us. A warm welcome to Ashok sir and Anand sir. Let me introduce you. Today we have with us CA Anand Jokhotia sir, who is treasurer of WRC of ICAI. I welcome you, sir. And also, along with Anand sir, we are blessed to have you today, Advocate Ashok Sanghvi sir. I welcome you, sir. So now let me introduce you to our dignitaries and great personalities. We are blessed to have today CA Anand Jokhotia sir. CA Anand Jokhotia is an experienced CA with All India ranking of 46 in the CA intermediate exam and has demonstrated history of working in the financial services industry. He holds the position of the managing director of A to Z Financial Consultancy Private Limited. He possesses a strong understanding of financial function and the capability of building up the system right from the search. He is ex-chairman of Pune branch of WRC of ICAI. CA Anand sir has been elected as a treasurer of WRC of ICAI. And I must mention this, under his chairmanship in the year 2018-19, Pune branch of ICAI has won 4 awards, namely National and Regional Best CA Branch along with Best Students Branch Award. A warm welcome to you, Anand sir. Thank you. Along with Anand sir, today we are fortunate to have such a senior advocate with us, none other than Advocate Ashok Sanghvi sir. Ashok sir is practicing since 1981 exclusively in sales tax to appellate side. He also delivers lectures on sales tax before various trade associations and study circles, meetings of WMTP Association.
He was regular column writer to monthly journal to Tax Tribune, circulated by WMTP Association. He held position of treasurer of ISTP Association Pune during 1994-95. He was also lecturer to Modern Law College for DTL students on MVET Act as well as CST Act during 2008-9 to 2011-12. And also to mention, he has got Lifetime Achievement Award from All India Federation of Tax Practitioner Mumbai. A very warm welcome to Ashok sir. And now I would like to introduce you all today's author, none other than C.A. Hanumantrao Chaudhary. C.A. Hanumantrao Chaudhary completed CA in the year 2006. He started practice in the year 2006. He also worked after completing practice for more than 1 decade in the field of manufacturing companies. He decided to write a book on SMEs and startup, which is Know Your Balance Sheet, which we are here for the launch. I congratulate Chaudhary sir once again for the book. And as I said earlier, this book is going to be bestseller and hit. And we are also waiting for the next book from you, sir. And I would like to end this on one more share. जिंदगी की सारी लड़ाई अभी बाकी है, इरादों के सभी सपने अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, जीतने को तो सारा आसमां बाकी है. क्या बात है, क्या बात है. Thank you, Gaurav sir. Over to you. It's a privilege. It's a privilege to have these stalwarts in front of us today. And C. Hanumantrao जी चौधरी, आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके बुक लॉन्च में इतने विशिष्ट अतिथि यहाँ आज पधारे हैं. और हमें बहुत फक्र है कि आपका जो संबंध है इतने गणमान्य लोगों के साथ है जो भारत की दिशा और दशा दोनों सुधारने में मदद करते रहे हैं. तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमको भी मिले और आपके बारे में इन गणमान्य सदस्यों का क्या कहना है आपके बुक के बारे में हम सभी जानने को बहुत इच्छुक हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले सीए आनंद जखोटिया साहब से कि आप अपने शब्दों में हनुमंतराव जी के लिए शुभकामनाएं कहें. नमस्कार, गुड इव्हनिंग. सर्वप्रथम आपण सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. So Hanumantrao had covered various concepts relating to taxation, then again relating to funding, what are the different schemes launched by government, funding related concepts. Then even we all know that CIBIL is very important. I am into finance field, so I can say that CIBIL is very important. He had covered even that how one can keep the CIBIL in good condition. Then again, very important aspect, subsidies, subsidy funding. These are the funds, the finance is the key. It's the blood for businesses. So subsidies here covered in depth. Again, no one can remain aloof from share market. So he covered share market as well. So भरपूर aspects cover केल्या आणि शेवटी सुंदर केलं बॅलन्स शीट ऑफ लाईफ तीही तुम्ही कव्हर केली. Well begin is half done. आणि तुम्ही सर्वात महत्त्वाचं टॉपिक नी सुरुवात केली आहे power of subconscious mind. Thank you. I received even a little bit of success in my life. I owe it to his book Power of Subconscious Mind. Hanumantrao ji and myself used to study in Pune Marathi Granthale 20 years back. Thank you. I used to read this book in big way. Thank you. MOC introduced me as a 46th merit ranker in CA Inter. But before that, I filled in both books. I referred this book, and this book motivated me, finalized my thought process, and took me to the success. And the very next attempt, I was in all India. So this is really whatever you call Bible, Gita, or whatever. Thank you. Those who think that they may not be fond of reading. So there are very good videos available about this book. Half an hour video you can check on YouTube, and that book can certainly change lives of many people. And this book on balance sheet of showing balance sheet
It will certainly change future of many businesses. It is certainly very useful to businessmen as well as accountants. My best compliment, and as well as Chairman WRC Lalit Bhai just conveyed me on phone. His best compliments to Hanuman Rao ji, his colleagues, his team, and everyone for the best success of this book. In council, I always refer Pune. P stands for prosperity, U stands for ultimate, N stands for natural, E stands for educational. So once again, this education is flowing from Pune. Thanks, Hanmantrao ji, for continuing. Thank you, Anand. Thank you. From Vidyech Mayargar, Pune. And this book certainly miss my colleague Chairman Dr. Lalit Bhai also appreciated, and we will wait to after this program. I congratulate you once again. And, Thank you very much. best of luck to all the teammates. Thank you. Thanks for inviting me. सर क्या कहें आपने इतनी अच्छी बातें कही इस किताब के बारे में, हनुमान जी के बारे में। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया कि सबकॉन्शियस माइंड वाली जो बात है उसको भी आपने टच किया। आप लोग साथ में उस बुक को पढ़े, इसके बारे में बताया। सिविल स्कोर अगर अच्छा हो तो कैसे बिजनेसमैन को फायदा हो सकता है, ये सारी जानकारियां आपने दी। आपने कहा कि ये बिजनेसमैन, अकाउंटेंट सबके लिए रामबाण जो है साबित होने वाली किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हनुमान जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और आपने आज हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सर। चलिए अब हम अपने दूसरे गणमान्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे, श्री अशोक सांघवी साहब को, कि वो भी अपने उद्गार प्रकट करें श्री हनुमंत राय चौधरी जी की किताब के बारे में और इनके बारे में। Chairman of India, Western India Regional Council, Chartered Accountant Lalit Ji Bajaj, Treasurer Anand Ji Jakhotia, proud members of the Chartered Accountant Hanumantrao Chaudhary family, and all the participants attending this publication function through Zoom meeting. Good evening, everyone. Good evening, sir. Friends, it gives me an immense pleasure to be witness to this auspicious occasion of e-publication of the most useful book, Know Your Balance Sheet, as authored by my dear friend, Chartered Accountant Hanumantrao. I have gone this publication in detail, and I am very much impressed with the manner in which it has written by Hanumantrao. It shows not only his in-depth knowledge about the subject, but also his presentation skill. He has explained it in a simple and easy language, various chapters, sub-chapters, and each and every head of asset and liability as appearing in the balance sheet, as well as head of expenditure as appearing in the profit and loss account. Though the title of the book, Know Your Balance Sheet, Hanumantrao has gone beyond the balance sheet and has given a detailed insight about the required ratio analysis, which are important in understanding the financial statement of any organization. He has also explained a detailed basic knowledge about the direct and indirect taxes. Thus, in my honest opinion, this publication will be most useful for all the businessmen and technocrats, as also the professional practicing accounts and taxation. From my experience about 40 years in the field of taxation, I would definitely say that in order to become a successful businessman, you need to have a deep understanding of the commercial matters related to your business, along with the technical matters. During my life journey, I have seen very few businessmen who are well versed with the commercial matters, and so they are running their business in business very smartly, efficiently, and in a sound manner. I am sure that Hanumantrao has done a wonderful job by publishing this publication with a view to educate the technocrats with the commercial matters and to make successful businessmen. Thus, he has proved himself to be a true partner in nation building, as always described by Institute of Chartered Accountants. My greetings and best wishes to Hanumantrao on this occasion. I am sure that he burned a lot of midnight oil to prepare and come up with the wonderful compilation. He has done the best utilization of the time available during the lockdown period and has set up a good example for others. I am sure that this is just a beginning. Hanumantrao will come up with many more publications in years to come. I am thankful from the bottom of my heart
to Hanumantrao for giving me this wonderful opportunity. Thanks, and once again, congratulations to Hanumantrao and all my best wishes. Thank you very much. Thank you. Wow, sir. Sir, it's a great compliment coming from an authority Thank like you. And 40 years in your field of endeavor, and you are saying these kind words to him. It means a lot to our writer. Definitely, this book will definitely pave way for all the budding entrepreneurs, business fellow technocrats. If they understand the basics inside out, it will definitely help them come up trumps in their life. Thank you so very much for your insightful words, sir. Thank you. आप दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट समय दिया आज। मैं जानता हूँ आप लोगों का समय बहुत कीमती है, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको देखने रहते हैं, इसलिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन हनुमंत जी को ऐसे ही मिलता रहेगा और आने वाले समय में, जैसा कि आपने कहा, ये अभी शुरुआत मात्र है, आगे बहुत सारी किताबों की फहरिस्त जो है तैयार होगी और इनकी किताबों से हिंदुस्तान के लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, अशोक सांघवी साहब। थैंक यू सर। वेल हनुमंत जी, इतनी अच्छी बातें आज सुनने को मिल रही हैं। दोनों वेटरन्स अपने अपने फील्ड के, बहुत ही रेप्यूटेड नाम आपके बारे में और आपकी किताब के बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। भारत अभी बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा, लॉकडाउन में काफी बिजनेसेस अफेक्टेड हुए और उस समय जब सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे, आपने निश्चय किया कि नहीं, इस परेशानी से लोगों को निकालना है तो मुझे अपने हिस्से का करना चाहिए, और आपने उस लॉकडाउन में एक बेहतरीन किताब लिख डाली। हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को उस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे मिले, तो प्लीज आप हमें बताएं, व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट? नो योर बैलेंस शीट सर। बैलेंस शीट में हमने बहुत सारे डिटेल्स में, कैसे कंसिडरिंग माय लास्ट 14 ईयर एक्सपीरियंस, मेरा जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादा तरफ से इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा है, उनको फाइनेंस के बारे में दे आर नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ इज द फाइनेंस। उनको हम लोग ज़्यादा तरफ से मार्गदर्शन दिया। उसमें उनका कहना ऐसा था कि सर आपने एक बुक लिखा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो सब मार्गदर्शन सभी इंजीनियर्स और मेरा फ्रेंड सर्कल में भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो हम लोग कंसिडर करके, वो भी हमने कंसिडर करके बुक्स में इंक्लूड किया। और जैसे अकाउंटेंट लोगों को भी हम लोग जब बोलता तो वो भी बोला सर आपने इतना तरफ से, अच्छा तरफ से अपना कंप्लायंस के बारे में आप इतना डिटेल्स में बात करते हैं, तो आप उसमें बुक्स में दिया तो बाकी सब लोगों के लिए बहुत सारी मार्गदर्शन होगा। उसके लिए वो भी कंसिडर करके हम लोग बुक्स में इंक्लूड कर दिया उसमें। ओके, अच्छा सर, आप ये बताएं कि वैसे हर राइटर ये चाहता है कि रीडर्स खुद से पढ़ें, एक्सप्लोर करें कि बुक में क्या क्या है, लेकिन तब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ हाइलाइट्स जो टॉपिक्स हैं उस बुक्स की, आप थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सभी जानना चाहते हैं किन किन बैकग्राउंड के लोगों के लिए किताब उपयुक्त होगी। ये सभी बैकग्राउंड के लिए अच्छा है, ज्यादा तरफ से एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा उपयोग होता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1-2 साल में उन्होंने बिजनेस को गिव अप करता है। इसमें लॉजिकली इसे स्टडी किया तो मिनिमम 1095 डेज आपको लगता है बिजनेस आपको मार्केट में सर्वाइव होने के लिए। आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। जैसे फर्स्ट 3 इयर्स में आपको समझ में आ जाते हैं आपने बिजनेस कैसे आपका ग्रोथ होगा, क्या आपने उसमें कुछ गलत करे तो वो 3 ईयर में आपको दिख के आ जाता है। उसके लिए आपको मार्केट में 3 ईयर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बिजनेसमैन उनका जब बैलेंस शीट हाथ में आया तो वो लोग ज्यादा तरफ से हम अपना टैक्स कितना है वो उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीजें में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसमें उनको एनालिसिस करने के लिए भी हम लोग बहुत सारे उसमें डिटेल्स दिया हुआ है, अपने कौन सा चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आपका रेशियो जो रहता है बैलेंस शीट का, वो बैलेंस शीट का रेशियो आप कई तरफ से आप देखना चाहिए। जैसे अभी आपका डेट इक्विटीज रेशियो रहते, आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो रहते, करेंट रेशियोज रहते, ये बहुत सारे रेशियो जो रहते हैं वो दे आर नेग्लेक्टिंग पार्ट। जैसे आपका सपोज आप बैंक में लोन लेना रहे तो आपका कितना लोन लेना चाहिए, आपका खुद का पैसे कितना आना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग उसमें बहुत सारे उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ। ग्रेट ग्रेट। अभी आपने एक नंबर लिया, एक और नंबर 1095 is the number of days that is required for one individual to really think of success in any field of endeavor, be it any business. How did you arrive at this number 1095 days, sir? Considering my experience, जो भी हमने देखता है, जैसे लास्ट 14 इयर्स में, जैसे मेरा पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका मैंने जैसे स्टडी किया हुआ, उनका जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड रहते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में दे आर स्ट्रगलिंग लॉट। 3 इयर्स के बाद उनका बिजनेस जो होता है वो मल्टीपल होने को चालू हो जाता है।
उसके लिए जो मार्केट में 3 ईयर सस्टेन करते हैं उनके लिए ज्यादा उधर ग्रोथ दिखा हुआ है। और उधर और एक हमने स्टडी किया, जैसे एक CNC मशीन उन्होंने लिया सपोज, उनका मिनिमम बिजनेस 3 लाख रुपीस होना चाहिए पर मंथ, तो वो मार्केट में उनका सब जो EMI है सब उनका BEP लेवल उनका मिनिमम मीट हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग स्टडी करके वो बुक्स में, एक बिजनेसमैन जैसे स्टार्टअप होता है तो उनको बहुत सारी फाइनेंस का नॉलेज नहीं रहता है, उनका ज्यादा तरफ से फाइनेंस का नॉलेज देके, कंप्लायंस पार्ट का नॉलेज देके उन्होंने ज्यादा तरफ से मार्केट में कैसे उन्होंने बिजनेस में सक्सेस होके ज्यादा से ज्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ये इस मोटिव रख के उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें लिखा हुआ है उसमें। सर, अभी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि हमें जॉब गिवर्स बनना चाहिए, जॉब सीकर्स वाली जो मेंटालिटी है उससे बाहर निकलना चाहिए। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को आपका क्या सजेशन है, क्या गोल्डन नगेट्स आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने स्टडी भी किया, एक 85% जो जॉब होल्डर है वो उनका खुद का जॉब में वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उनको कैसे बिजनेस करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजंस दे आर गोइंग फॉर द जॉब्स। उनके लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो भी बिजनेस में आना है तो फर्स्ट 2-3 इयर्स में अपने जॉब करके वापस बिजनेस में आना चाहिए। इफ यू आर स्पेंडिंग 4 to 5 years इन योर जॉब, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू द बिजनेस। उसके लिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, तो बिजनेसमैन बनना है तो आपको फर्स्ट 1-2 साल में आपको डिसीजन लेना है, तो ज्यादा तरफ से आप उसमें इन्वॉल्व होकर आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बार आपको मंथली इनकम आने का हैबिट पड़ गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द बिजनेस। इट्स वेरी दिस प्रॉब्लम थिंग फॉर देम। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको अगर जॉब गिवर बनना है तो ज्यादा दिन किसी जॉब में टिकना जो है आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर आप निकल नहीं पाएंगे उस चक्कर से। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफें जो हैं शुरू में झेली हैं, उसके बावजूद आपका मोराल कभी कमजोर नहीं हुआ, आप कभी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, और एक के बाद एक आपने सफलताएं अर्जित की, अपने परिवार का नाम रोशन किया। We would love to understand what you have gone through in your life. Can you walk us through your life journey, sir, in nutshell? जैसे अभी हम लोग फार्मर का बिलोंग फैमिली करते, तो फार्मर का जैसे अपना इंडिया में जैसे प्रॉब्लम्स रहते वो भी अपना पार्ट ऑफ अपना फैमिली में भी था। जैसे हम लोग पुणे में आने के बाद बाकी बहुत सारे खर्चा मीट करने के लिए नहीं होता था, तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा इनिशियली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बियर हुआ। जैसे अपना फ्रेंड सर्कल था उसमें बहुत सारे मेरे को हेल्प मिला, बाकी अपना ब्रदर ने भी बहुत सारे सपोर्ट किया, ऐसे हम लोग करके अपना जर्नी को कंप्लीट किया। बाद में CA 2006 में CA होने के बाद फिर हमने खुद का प्रैक्टिस भी चालू किया। जैसे सब लोग फर्स्ट 3 इयर्स में बहुत सारे मेहनत करना पड़ते, हम लोग भी मेहनत किया। जैसे अभी कंसिडरिंग लास्ट 14 इयर्स मेरा सब ये फीडबैक लेके ऐसे लगा कि मेरे को एक बुक्स लिखना चाहिए इसके ऊपर। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंस के बारे में वो लोग नेग्लेक्ट करता है, जो मेन हार्ट ऑफ द बिजनेस है वो उसको ज़्यादा तरफ से नेग्लेक्ट होता है। तो हम वो सोच के मैंने वो बुक्स को राइट करने का डिसीजन ले लिया। तो आज का दिन भी उसका लॉन्च के लिए डे आ गया। थैंक यू फॉर ऑल। यस, बहुत बहुत खुशी की बात है सर, और डेफिनेटली ये जो किताब है आपकी भारत के कोने कोने में पहुंचे और भारत के सभी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इसको पढ़ पाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य भाषाओं में भी ये किताब जो पब्लिश होके आएगी लोगों के सामने में। यस, हाँ जी। अच्छा सर, आप एक चीज बताएं, आपने अपनी किताब में भारत की आधी आबादी यानी कि महिलाएं, उनके बारे में भी एक सेक्शन डेडिकेट किया है स्टार्टअप्स में। आपका क्या मानना है कि अगर महिलाओं को प्रॉपर एम्पावर किया जाए तो देश की डेवलपमेंट की जो रेट है, जो गति है, उसको बल मिल सकता है? इसके बारे में आपने किताब में कई सारी स्कीम्स के बारे में चर्चा की है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं सर। जैसे आजकल इसमें ज़्यादा वुमेन और मेन पे ज़्यादा अभी ज़्यादा तरफ से एजुकेशन हुआ, उसके लिए फ़र्क ज़्यादा नहीं रहा। वुमेन भी बहुत सारे अचीवमेंट्स कर रहे हैं, बट उसमें कैसे अपना उनका जो भी फैसिलिटी मिलता है उसमें ज़्यादा तरफ से उनको अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए वो बुक्स में ये भी लिखा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सा बेनिफिट मिलेगा, उनका जो भी फैसिलिटी मिलेगा, इंटरेस्ट का जो भी बेनिफिट मिलेगा, वो सब चीज़ें हम लोग बुक में ऐड किया हुआ उसमें से। अच्छा सर, आप एक चीज बताएं, भारत में एक सामान्य ज्ञान जो है कहता है कि CA जो टैक्स में डील करते हैं, लेकिन सर ने अभी, अशोक सांघवी साहब ने एक बात कही आपके बारे में, आपके फ्रेटर्निटी के लोगों के बारे में, यू आर द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। सो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक CA नेशन बिल्डिंग में किस तरह से योगदान देता है? फाइनेंस की पॉइंट ऑफ में अपना बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे अपना जो
आर्मी लोग अपना इंडिया को प्रोटेक्ट करते, जैसे हम लोग फाइनेंस का जो सीएस लोग हैं उसमें ज़्यादा तरफ से अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं उसमें से। तो आपको लगता है कि अगर भारतवर्ष में टैक्स अवेयरनेस बढ़े तो भारत की जो प्रगति है उसकी गति इंप्रूव होगी, और सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके टैक्स सही तरीके से देने से वो न सिर्फ अपना भला करते हैं बल्कि अपने देश को भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। Isn't it, sir? Yes, yes, of course. मतलब जानकारी के अभाव में लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम वाली चीज है, तो थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं कि कैसे सर इसको वर्कआउट किया जा सकता है, कैसे लोगों के मन में से वहम हटाया जा सकता है कि नहीं टैक्स भरने से आपका भी भला है और देश का भी भला है। देखिए, जब भी टैक्स पेयर ज़्यादा टैक्स पे करने से गवर्नमेंट उनको वापस उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, रोड मिलेगा आपको, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करने के लिए मिलेगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब टैक्स पे करेंगे तो ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट शुड बी रिच, पीपल शुड नॉट बी रिच। जैसे गवर्नमेंट रिच बनेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए वो ज़्यादा खर्चा करेंगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करने से सबके लिए भला होगा उसमें से। अच्छा, अगर मैं आपसे एक उदाहरण के रूप में क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी 1000 रुपए की इनकम है, 1000 रुपए में मुझे कितना टैक्स जो है पे करना पड़ता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी समझने का मौका मिले। ऊपर ही आपको टैक्स पे करना रहता है। 1000 रुपए आपका टर्नओवर है तो आपको जो भी नेट प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। मतलब अगर 1000 रुपए अगर टर्नओवर है तो इसका मतलब कि अगर मैं 300 रुपए कमा रहा हूँ, यस, 300 रुपए अगर मेरी प्रॉफिट है तो उस पर ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अगर नहीं सबको बहुत जरूरत है। जी। अच्छा सर, अभी पोस्ट लॉकडाउन की जो स्थिति भारत की होने वाली है, आपने एक चर्चा के दौरान मुझे बताया था कि 2021 जो है रोड टू रिकवरी का साल होगा। आपका क्या मानना है कि भारत को इस सिचुएशन से रिकवर करने में कितना समय लग सकता है? मार्च एंड तक अपना ऐसे चलेगा, बाद में जब 1 अप्रैल 2021 से अपना इंडिया प्रोग्रेस होने को चालू हो जाएगा। उसके पीछे बहुत बड़ा काम चालू है। जैसे भी जो भी चाइना का जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसको इंडिया में प्रोडक्ट चालू मैन्युफैक्चरिंग करके अपना इंडिया के लिए और एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे काम उसका पीछे चालू है। जैसे वो सब होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपना इंडिया बाद में 21 to 30 अपना इंडिया सुपर पावर हो जाएगा, उसमें नो डाउट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया है हमारे एक दर्शक के तरफ से कि डज सीए स्माइल? क्या कभी कोई सीए मुस्कुराता भी है? बिकॉज वी आर ए वुमेन बीइंग नॉट ए रोबोट। बिकॉज हम लोग भी स्माइल कर सकते हैं, बट कैसे अपना एक वर्क का जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें ज्यादा तरफ से अपना ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसमें से। जी, मैं और भी लोगों से इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप इस लाइव सेशन के दरमियान क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जाकर आप दर्ज करा सकते हैं। हम आपके बिहाफ पर वो क्वेश्चन हनुमंत राव जी से पूछेंगे। अभी एक क्वेश्चन आया है सर, हाउ कैन सीए लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ? हाउ कैन? जी, ये पूछना चाहते हैं कि एक सीए कैसे स्ट्रेस मुक्त जिंदगी जी सकता है। इन्हें लगता है कि इतना स्ट्रेस है कि बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप क्या फिलॉसफी और क्या वैल्यूज अपनाते हैं अपनी जिंदगी में जिससे आप स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं? स्ट्रेस फ्री जैसे अभी बैलेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए, वर्क और अपना फैमिली का बैलेंस लाइफ रखा तो, और रोज अपने मेडिटेशन, योगा, ये भी अपना भी इंस्टीट्यूट उसमें इंक्लूड किया हुआ है। इससे हम लोग ज्यादा बैलेंसिंग लाइफ जी सकते हैं उसमें से। ओके। एक प्रश्न और आया है हमारे पास में कि आज सीए हनुमंत राव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत जाना माना नाम है अपनी इंडस्ट्री का, लेकिन जब वो बड़े हो रहे थे, मतलब बाल हनुमंत जी की बात हो रही है, तो उस समय किस बुक ने उनको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था और वो बचपन में क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली बचपन में मेरा ड्रीम था साइंस करके डॉक्टर बनना, बट इसमें अपना फार्मर फैमिली का आगे अपने को समझ में आ गया इसमें ज़्यादा तरफ से खर्चा आ जाएगा। उसके लिए मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया, क्योंकि उधर अपना कॉमर्स के लिए फीस कम था, तो हम लोग कॉमर्स चॉइस किया। कॉमर्स होने के बाद फिर हमने सीए में आके सीए कंप्लीट कर लिया। ओके। अभी एक क्वेश्चन आया है दिग्विजय सिंह जोधा साहब का। उनका यह पूछना है कि जो अपकमिंग सीएस हैं उनके सामने में की चैलेंजेस क्या आने वाले हैं?
देखिए ये जो सीए अपना 1949 से इसका जो ये है वो एवरग्रीन है। चैलेंजेस जो पहले हैं वो भी आगे भी वही रहेगा, जो भी उनका स्टैंडर्ड रहेगा, सिस्टम रहेगा, वो आगे और नेक्स्ट कितना भी साल हुआ तो सेम स्टैंडर्ड रहेगा, उसके उनके लिए एक्स्ट्रा चैलेंज कुछ नहीं रहेगा। बट जो सीए करना चाहते हैं उनके लिए जो बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा तरफ से डेडिकेशन और उनका डिसिप्लिन बहुत होना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे सीए होने में ज़्यादा तरफ से सक्सेस उनको मिल जाए। जी 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 जी। अच्छा सर, आप एक चीज बताएं कि जब भी कोई राइटर किताब लिखना शुरू करता है, आपकी किताब छप चुकी है, आप एक अकम्पलिश्ड राइटर हो चुके हैं जिन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी है। आपने क्या क्या ब्लॉक्स अनुभव किए इस किताब राइटिंग के दौरान, या फिर आपने बिल्कुल किया ही नहीं और आपने किताब कंप्लीट कर डाली? उसमें बहुत सारे हमने ब्लॉक हर एक चैप्टर वाइज हमने उसमें लिखा हुआ है। जैसे एक चैप्टर होने के बाद हम लोग एक एक उसका रिलेटेड हमने ब्लॉक दिया। उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स ऐसे कि बिवेयर ऑफ योर स्मॉल एक्सपेंसेस, स्मॉल लीकेज कैन सिंक योर होल ग्रेट सीप्स। जैसे आपका एक छोटे छोटे चीज भी आपको बहुत मैटर होता है, उसके लिए हम लोग हर एक चैप्टर के बाद एक एक हमने उसमें ब्लॉक्स लिखा हुआ है। सर, अभी एक क्वेश्चन आया है, आपकी किताब के एक चैप्टर का भी नाम है रेशियोज, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि लोन और सेल का जो रेशियो होता है सेफ बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, जो आपकी किताब में भी शायद मेंशन है। इसके बारे में एक जानकारी चाहते हैं राजेंद्र चौधरी जी। लोन कैसे रहते हैं अभी अपना मैक्सिमम आप 4:1 2:1 में अपने ले सकते हैं। मीन्स आपका ₹1 रहे तो बैंक का ₹2 मैक्सिमम होना चाहिए। इससे जैसे जैसे वो बढ़ता है बैंक का लोन, वो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ जाता है। उसके बेस्ट रेशियो बोले तो 2:1, ₹2 बैंक करे तो ₹1 आपका होना चाहिए उसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि बहुत सारे लोग शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से ग्रसित हैं हिंदुस्तान में। अगर किसी पड़ोसी को देखा उन्होंने कि इन्होंने बहुत शानदार घर खरीद लिया, बहुत शानदार गाड़ी खरीद ली, और हम जो है बस एनवी के वशीभूत होकर अपने सारे बैलेंस बिगाड़ लेते हैं अगर हम इन रेशियोज का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा ऐसा अमूमन होता है सर, जिनको जानकारी नहीं है जी। तो आपका क्या मानना है कि ये कौन सा रेशियो है सर, जिसको अगर हम अडेयर करें, जिसको हम दिमाग में रखकर कुछ भी परचेस करें या फिर कुछ भी लोन लें तो वो कारगर साबित होगा और हमें इन द लॉन्ग रन परेशानी से बचाएगा? जैसे जब आप लोन लेने के लिए जाए तो मेरा सजेशन ऐसे रहेगा, एटलीस्ट आपका 40 to 50% आपका ओन मनी होना चाहिए। कोई लोग 90% तक लोन लेता तो उनका सब फाइनेंस उसमें बिगड़ जाने का चांसेस बहुत रहते हैं उसमें से। ओके ओके। एक हमारे दर्शक हैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको तो पहले बधाइयां दे रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बहुत बधाइयां आपको। हमें फिजिकल कॉपी कब तक मिल पाएगी? नो योर बैलेंस शीट। फिजिकल कॉपी ऑलरेडी रेडी है, 1 वीक मिल जाएगा जैसे आपका चाहिए उसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि स्टेटस ऑफ इंडियन CAs comparing to international standards and how Indian CA is different from other countries, ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए सीए जो इंडिया का सीए इट्स वेरी रेस्पेक्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इट इज टफेस्ट कोर्स अमंग द IAS IPS। इट इज ऑलरेडी 2014 में गिनीज रिकॉर्ड भी हुआ है। ये जो स्टैंडर्ड रहेगा इट्स ऑल ओवर इंडिया में रेस्पेक्टेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड फॉर इंडियन सीएस। एंड दिग्विजय जी का एक और क्वेश्चन आया है, ये पहले से संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं when is your second book coming and likely subject in your mind? I will start writing in next year 1421. I am thinking to start in my financial year. हमने टीवी एड्स में देखा है सचिन तेंदुलकर को ये कहते हुए कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सीए हनुमंत राव एनर्जी? देखिए अपना जो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्किंग मेक अ डिफरेंस। आपने जब लाइफ में कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग रखा तो आपकी ज़्यादा तरफ से आपको सक्सेस मिल जाते हैं। ललित जी आए हैं, उनको वेलकम करेंगे हम लोग। वेलकम सर, वेलकम। It's a great honor that CA Lalit Bajaj ji is here and he has accepted our invitation to be a part of this book launch. We welcome you, sir. Lalit sir, we welcome you. Thank you for giving your valuable time and being a part of this book launch, sir. I would love to have my co-host CA Sukanya Halyal to please welcome CA Lalit Bajaj. Thank you, Gaurav. Lalit sir, a very warm welcome to you. Thank you for being with us today. Let me introduce you, Lalit sir.
CA Lalit Bajaj is the chairman of WRC of ICI for 2020-21. He was also chairman of Vasai branch of WRC of ICI for the year 2010-2011. CA Lalit Bajaj is engaged in the practice from last 22 years. He is managing partner at Maces LLB and Company. He is regular speaker at various forums and seminars, contributors to various journals and magazines. He is always available for mentoring to students and young members. He is sharing the knowledge through monthly booklet named Connection since last 9 years. He is actively involved with Bharat Vikas Parishad, Hari Satsang Samiti, Rotary Club, etc. A very warm welcome to Lalit sir. Welcome, Lalit ji. Thank you. Welcome, sir. वेलकम टू पुणे ललित भाई. Thank you, sir, for joining with us today. Thank you, Sukanya. It is indeed a great moment wherein our fellow members have come out with such a apt publication for all of us. At the outset, I would like to congratulate Hanumant Rao ji, Chaudhary ji for coming out with such a significant publication, which I feel so. When we talk about know your balance sheet, I think so the subject itself speaks in such a wide genre, but Hanumant Rao ji has tried to cover the subject in a publication, I think so. He has done a wonderful job, first of all. Secondly, the efforts which he must have put in for coming out with such a publication, I think so it requires a great effort, great effort. Congratulate you, sir, and thanks for giving all the professional members and students this opportunity to learn some of the aspects of the financial world, whether it's with respect to compliances or whether with respect to financial analysis. So really, I am overwhelmed with your contribution. And let me share with you, since my co-colleague Anand Jakotia, treasurer of Western India Regional Council, is also there. Sukanya is also a chartered accountant, and Gaurav, I'm just introduced him for the first time. So let me tell you that at WRC also, we are working on 3 areas. One is activities, which you all are aware, we are doing a lot of activities. Second, we are working on initiatives. We are taking many initiatives in WRC. And third is publications. So we are putting special impetus as far as coming out with relevant publication is concerned. And I would like to share with all of you that Anand Jakotia, under his leadership, is taking a lead, and we are coming out with 5 industry-specific publications, wherein we are covering 5 industries: technology, logistics, hospitality, healthcare, and one more. So let me tell you that you can understand with this that WRC has one of the core activity at its main genre of coming out with very relevant publication. And Hanumant Rao ji, you have given us one more subject and one more idea with coming out with this publication. So once again, congratulate all of you, and I would request Anand bhai that if we can engulf Hanumant Rao ji in a couple of initiatives and projects of WRC, we will really be fortunate to get his efforts and guidance for the benefit of all members and students at large of WRC. So I'm feeling really honored to be with all of you, and I'm looking forward for more and more such kind of initiatives from your side, sir, from your desk. Thank you. So nice of you, Lalit bhai. Thank you, Lalit sir. It is privileged to have all of you today here. Applications हे करत videos. You may proceed, Gaurav sir. Yeah. Yes, sir is also coming. Wait for 2 minutes. Sir. Okay. Please turn on my video.
Ashok ji should be, you are also chartered accountant? He is senior advocate, renowned advocate in Pune. Namaste, Ashok sir. Sanghvi sir is senior advocate. Yes. It's a great privilege to have the chairman of WIRC to be a part of this book launch, and he has accepted our invitation and he has showered his praises on CA Hanumant Rao Chaudhary. Thank you so very much, sir, for your kind words, and it means a lot to our writer because he has definitely burnt so much of midnight oil to put out this wonderful book that will definitely help so many budding entrepreneurs and that will pave way for them to make huge successes in their life. Thank you so very much, sir. बहुत खुशी की बात है कि इतने गणमान्य लोग हमारे बीच में आज मौजूद हैं। हनुमंत राव जी, आप सच में फिर से कहना चाहता हूं कि आपने कुछ कमाई जो असली की है वो ऐसे लोगों का सानिध्य है। आज के आपके इस बुक लॉन्च में इतने सुलझे हुए लोग, इतनी समझ वाले लोग जिन्होंने भारत को बहुत अच्छे ढंग से सुदृढ़ करने में मजबूती से अपना योगदान दिया है। सीए फ्रेटर्निटी का इतना बड़ा प्रेजेंस आपके इस बुक इवेंट में बताता है कि आपकी भी वैल्यू ये फ्रेटर्निटी करती है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को एक साथ देखकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हनुमंत राव जी, आपसे ये प्रश्नोत्तरी का जो सिलसिला हमने शुरू किया है इसको हम बरकरार रखते हैं। कुछ और प्रश्न आए हैं हमारे सामने में, हम उनको लेते हैं बारी बारी से। गौरव जी पब्लिकेशन करेंगे पहले, बाद में क्वेश्चन आंसर में जाएंगे सर। जी ठीक है। तो पब्लिकेशन के बारे में जो जानकारी है वो हम चाहेंगे कि आप अपनी जुबानी खुद से जो है व्यक्त करें। जो भी बात आप अपने बुक के एक्सर्प्ट्स के रूप में जो है पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को जो है सुनाएं प्लीज। पहले बुक्स लॉन्च करेंगे, वो वीडियो प्ले कर दीजिए, बाद में फिर सरों का इसमें हो जाएगा। ओके ठीक है। तो महेश जी, वो वाली बुक लॉन्च का जो वीडियो है आपके पास, वैल्यूएबल टाइम उनका आगे क्या ये रहता है? जी वो वाली वीडियो आप प्ले करें, बुक लॉन्च वाली। ललित जी भी आ गए तो ये कर। महेश जी, सुकन्या, अदरवाइज यू प्ले द वीडियोस। अगर आपके पास में भी है तो आप भी प्ले कर सकते हैं। Yes, I'll play. यस। नहीं करू का सुकन्या में तो? हाँ सर, एकदा बघता का? वंडरफुल। Hearty congratulations, Hanumant Rao ji. Hearty congratulations. हनुमंत राव जी। आज आपकी मेहनत सफल हो गई। सीए ललित भट्ट, सीए आनंद जखोटिया साहब, अशोक सांघवी साहब, इन तीनों के प्रेजेंस में आपकी बुक नो योर बैलेंस शीट फाइनली सबके लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। बहुत बहुत बधाई सीए हनुमंत राव जी आपको। थैंक यू। गौरव जी एक ललित भाई की लाइन कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने अभी अपने एड्रेस में लिखी थी
कि challenges make life interesting and overcoming those challenges make life meaningful. तो ये जो पैंडेमिक वाला चैलेंज है, इसके बावजूद इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी भी और आज लॉन्च भी की है, ई लॉन्च। तो सच में आपने लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बनाया और मीनिंगफुल भी बनाया। वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा कीजिए। एक्चुअली ये जो इन्होंने कर दिखाया है इस लॉकडाउन में, ये एक नजीर है कि दिक्कतें सबकी जिंदगी में आती हैं। मुश्किल परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे ही मनस्थिति के व्यक्ति हैं हनुमंतराव जी। इन्होंने एक नजीर पेश की है कि घबराना नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपको उससे ऊपर निकलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों को भी प्रेरित करना है अपने कामों से। जी अशोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये सर आ गए, वेलकम करिए। हेलो, क्या बात है। अभी हमारे बीच में एक और बहुत ही मुख्य, एक ऐसे व्यक्ति जिनका हम सभी इंतजार कर रहे थे और हनुमंतराव जी की जिंदगी में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान रहा है इनकी जिंदगी को रिवैम्प करने में। हमारे सबके चहेते हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट, द वन एंड ओनली भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सभी लोगों से इनको स्वागत करने के लिए गुजारिश करता हूं। वेलकम BSR सर। हम जानते हैं कि आप अभी बहुत कठिन परिस्थितियों से आपका परिवार गुजर रहा है, उसके बावजूद आपने ये आमंत्रण स्वीकार किया सीए हनुमंतराव जी इस बुक लॉन्च में आप आए। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि ये कठिन समय है, उसके बावजूद आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। Congratulations, Hanumantrao sir. Very, very massive congratulations for this book launch. And this is really, really a milestone. You know, हर आदमी की लाइफ में बहुत सारी किताबें पढ़ना एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जब आपकी खुद की किताब लिखी जाती है तो एक किताब लिखने के चक्कर में आप इतने मेच्योर हो जाते हो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस बुक, लेकिन ये जरूर है कि इस बुक लिखने की प्रक्रिया में जो मेच्योरिटी, जो विजडम, जो पावर आपके अंदर जनरेट हुई है, दैट विल हेल्प मिलियंस एंड मिलियंस। एंड आई रियली रियली विश यू एंड द बुक to go along long places and help millions and millions. And I'm so proud to be a part of this, क्योंकि I remember कि आपने बहुत टाइम पहले ये रेजोल्यूशन लिया था एक कमांडो ट्रेनिंग के सेशन में कि बाय 2020 एंड या उससे पहले आपकी किताब लॉन्च होगी, और आपने अपने कमिटमेंट को जिया, ना सिर्फ जिया, उसको एक मार्गदर्शन बन के आप उभरे काफ़ी लोगों के लिए। बिकॉज यू नो, कमिटमेंट लेना, मुंह से बोल देना तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन मुंह से बोलने के बाद उसे याद रखना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसे पूरी तरह से करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। यू आर वन ऑफ दोस, सो कांग्रेचुलेशंस सर, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है। कमिंग फ्रॉम BSR, इट मींस अ लॉट हनुमान जी, इजंट इट? आपने कहा, BSR साहब ने कहा कि कमिटमेंट लेना अलग बात है और कमिटमेंट को निभा जाना अलग बात होता है। बहुत सारे लोग कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सी हनुमंतराव चौधरी फॉर लिविंग अप टू योर वर्ड्स। आपने कर दिखाया। Congratulations, sir. If you permit, may I leave for the time being? Thank you, sir. Yes, Thank sir. you for today's session. You were attended and given your valuable times on Sunday also. Thank you very much. And you are only in first call you are accepted. Thank you so much for today. Thank you. ललित बजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए सर। Thank you आनंद, thank you सुकन्या। Thank you, sir. हनुमान जी, हम प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख, पूछ लीजिए कैसे उनका, कैसे शेड्यूल से, कैसे आनंद जी को और अशोक सर से, कैसे उनका भी कुछ। जी अशोक साहब, आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपको कोई भी असुविधा हो सर, मतलब समय की पाबंदी का, आपको अगर कहीं और भी आपका एंगेजमेंट है तो आप मतलब बिल्कुल फ्री हैं सर मूव करने के लिए। अदरवाइज हम आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सर।
Please. Should we No go ahead and problem. ask? Yes. Okay. 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 सर आपने आपकी जो एक्नॉलेजमेंट मिली, इनको क्लेम मिली हनुमान जी की किताब के बारे में, मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। आपने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये बिजनेसमैन के लिए गीता से कम नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। और क्या कारण है, क्या आपने देखा इस किताब में जो आपने कह दिया कि ये किताब गीता से कम साबित नहीं होने वाली? साहब उन्होंने खाली बैलेंस शीट नहीं बनाया है सर, he has not only produced the he has gone beyond the balance sheet, यानी एनालिटिकल स्टडी उसका कैसे करने का क्या कई और देखो अभी हरीश सावळे अभी एडवोकेट है, वो ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही इज प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है, दो पर्सन हु नोज द बैलेंस शीट, he can systematically plead his cases in high court, supreme court. So Great. Okay. Subject of knowledge is very important, the field in which you are practicing. It's a big compliment coming from an authority like you, sir. It means a lot to him, sir. इनका जो कवर पेज है उस पे भी इन्होंने लिखा है कि बैलेंस शीट इज द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, सर? बैलेंस शीट के बगैर जिसको देखो अभी 2000 समझो कोई एडवोकेट बीए एलएलबी है, if he doesn't know the accounts he will not practice. He must have a sufficient knowledge of procedural knowledge होना ही चाहिए उसको। जी सर। अभी हरीश सावळे साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, he is a chartered accountant, that's why he is pleading his taxation cases in a very systematic manner. तो नॉलेज जो अकाउंट्स का वो हाँ वो होना ही चाहिए, अकाउंट्स का नॉलेज। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हनुमान जी, आपसे एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है एक दर्शक का कि अगर इस किताब को अगर एक फिल्म का रूप दिया जाए, अगर इसको फिक्शनाइज किया जाए, तो इस फिल्म में कैरेक्टर्स प्ले करने वाले कौन से लोग होंगे आपके पसंदीदा? क्योंकि एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे क्लूज हैं कि अगर आप इस ढंग से बिजनेस करें, इस ढंग से अपने बैलेंस शीट का ख्याल रखें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो अगर इसको हम अगर फिल्म बनाते हैं तो इस फिल्म के मुख्य किरदार आपके पसंदीदा कलाकार कौन से होंगे? जैसे हर एक बिजनेसमैन को उनका बिजनेस में सिर्फ टर्नओवर बढ़ाना एक ही उनका काम नहीं है, उसमें उनको प्रॉफिट कितना मिलते हैं वो भी उनको देखना बहुत जरूरी है। दे आर टोटली टेक्निकल पीपल्स, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट दे आर अर्निंग। बहुत सारे बैंक से लोन लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करके वो लोग उनका बिजनेस में उनको बाद में पता चलेगा 5-10 साल के बाद उनका उसमें कुछ प्रॉफिट है ही नहीं है। दे आर टोटली इन्वेस्टिंग थ्रू बैंक लोन्स इंस्टेड ऑफ देयर आउट ऑफ ओन सोर्सेस ऑफ मनी। ये जो बुक्स में लिखा हुआ है, आपको जितना लोन चाहिए, कैसे लोन लेना चाहिए एज ए बिजनेसमैन, कभी कभी आपको लोन नहीं चाहिए ऐसे भी बोलने का आपका पास एक मन का तैयारी चाहिए उसमें, तो ये आप बिजनेस में सक्सेस हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें उसमें बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है उसमें। अच्छा, तो आपकी किताब में घर खरीदने वालों के लिए भी जानकारियां हैं, तो हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये किताब उनको कैसे घर खरीदने में मदद कर सकती है। देखिए, अभी घर आपको लेना है तो अभी मिनिमम आपको 2 BHK घर लेना तो आपका मिनिमम 75 लाख रुपीस आपको पे करना पड़ता है। आपको ये एनालिसिस करना है आपको आपका खुद का अमाउंट कितना है और आपका बैंक से कितना लोन लेना है। बहुत सारे लोग 90% लोन लेके घर लेता है, ये एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं है उनके लिए। एटलीस्ट 40 to 50% उनका खुद का पैसे होना चाहिए। जैसे आपने सपोज 75 लाख का घर लेना तो आपका 35 लाख आपका खुद का होना चाहिए, 40 लाख आपका लोन होना चाहिए। पहले अपना पेरेंट्स पहले सेव करके बाद में खर्चा करता था, बट अभी न्यू जनरेशन पहले लोन लेके खर्चा करेंगे, बाद में सेव करते जाएंगे। इसमें उससे उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो उन्होंने दे आर वर्किंग फॉर बैंक पर्पज नॉट फॉर देयर ओन पर्पज। इसके लिए बहुत सारे आज का बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि लोन लेना एक बहुत इजी काम है, उनका जो भी उनका यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर रीपेमेंट्स, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान बिजनेसमैन लोग दिया तो उनको ज़्यादा से सक्सेस मिलेगा। वो ज़्यादा बुक्स में हम लोग उसमें ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ओके सर, ओके। अच्छा, आपने अपनी किताब में बियॉन्ड बैलेंस शीट जाकर भी 2 टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं सर। एक है सॉफ्ट स्किल्स का चैप्टर और एक है लाइफ की बैलेंस शीट। हमारे दर्शक उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। किताब तो वो पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आप भी कर दें। देखिए, अभी सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हर एक आपका, चाहे आप प्रोफेशन में रहो चाहे बिजनेस में हो,
कौन सा भी आपका जो भी करियर में सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, वो हम कंसिडर करते हुए मैंने बहुत सारे अभी मोर देन 1000 लोगों का, जब अकाउंटेंट लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारे लोग अपडेट नहीं रहते, नहीं तो उनके पास सॉफ्ट स्किल नहीं रहते, डिसिप्लिन नहीं रहते, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो कि उनका भी कुछ करियर बने, वो भी वो पॉइंट्स उसमें ऐड करके सॉफ्ट स्किल को हम लोग कंसिडर किया हुआ उसमें से। ओके सर, वेरी गुड। देखिए इस डिस्कशन में मतलब इतने सारे पॉइंट्स उभर के सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे तो लगेंगे इसको कंक्लूड करने में, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हम बारी बारी से उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे, तो प्लीज जो मॉडरेटर हैं मुझे आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और इस फिलहाल मैं हनुमान जी से कुछ हार्डकोर स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछकर कुछ थोड़ा सा हल्के फुल्के क्वेश्चंस पूछता हूं। हमारे कुछ दर्शक उनके व्यक्तिगत पक्ष को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए वो प्रश्न आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। हनुमान जी तैयार हैं एक रैपिड फायर राउंड के लिए? यस यस। हनुमान जी, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करने वक्त शांति पसंद है या फिर म्यूजिक के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? काम करते टाइम म्यूजिक चाहिए, ज्यादा म्यूजिक रहा तो अपना माइंड फ्रेश रहेगा जी। और अगर हम मूवी और बुक की बात करें तो आप किसको प्रेफर करते हैं ज्यादा? ऑलवेज बुक्स। ओके। और लस्सी या कोल्ड ड्रिंक? लस्सी ज्यादा पसंद है। मतलब बचपन वाली आदत अभी भी बनी हुई है। आपके बड़े भाई साहब से चर्चा हुई, उन्होंने कहा था कि हनुमंत को लस्सी बहुत पसंद है, दही बहुत पसंद है। यस यस। ओके। आप मॉर्निंग पर्सन है या फिर नाइट आउल है? मॉर्निंग, जैसे मैं बीएसआर सर का कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन हो गया तब से मैं आई एम वेक अप एट 5। वाओ, इनक्रेडिबल, क्या बात है। यस। एंड आपको बड़ी पार्टीज करना पसंद है या फिर स्मॉल गैदरिंग पसंद है? स्मॉल गैदरिंग एंड फ्रीक्वेंटली वी हैव टू मीट टुगेदर। ओके। आपको क्लासिकल आर्ट पसंद है या फिर मॉडर्न आर्ट? क्लासिकल। ओके। अकेले काम करना पसंद है या फिर टीम के साथ? हाँ जी। अकेले काम करना पसंद है या फिर टीम के साथ? टीम मेक द डिफरेंस। ओके, टीम मेक्स द डिफरेंस, वेरी गुड। लव और मनी? लव। ओके। सिंगिंग और डांसिंग? सिंगिंग। वेरी गुड। तो आपको कौन से सिंगर बहुत पसंद है? AR रहमान and SP Balasubramanian recently he's died. Oh, yes, such a wonderful singer. आग या बर्फ? हाँ जी, can you repeat? फायर और आइस? आइस। ओके। मतलब आपको कूल रहना पसंद है, हॉट रहना पसंद नहीं है। ओके। मनी और फेम? फेम। ओके। स्वीट और सॉल्टी? स्वीट स्वीट। और कौन सा स्वीट? धारवाड़ का पेड़ा? या पेड़ा, यस। देखिए थोड़ी जानकारी मैंने भी एकत्रित की है आपके बारे में। ओके, चलिए कुछ और हल्के फुल्के प्रश्न हैं, उसके बाद हम अपने परिवार के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे जिनके सहयोग से आपका ये यज्ञ जो है वो पूरा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर से मिलने का मौका मिले जिनका देहांत हो चुका है, उनमें से आप किससे मिलना चाहेंगे सबसे पहले? Can you repeat question? जितनी भी महान हस्तियां जिन्होंने भारत का, पूरी दुनिया का भला किया, जो अभी दिवंगत हो चुकी हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए और आप वापस जा सकें टाइम मशीन के माध्यम से, तो आप किससे मुलाकात करना चाहेंगे? महात्मा गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री। ओके। एक क्वेश्चन है, अगर आपको आपकी सारी मेमोरीज खत्म हो जाती है लेकिन एक मेमोरी रहती है, तो कौन सी मेमोरी आप रखना चाहेंगे अपने पास? नॉलेज। नॉलेज, ओके। अगर आपको इस ग्रह पर डेजर्ट, माउंटेन्स, ओशन, इन तीनों जगहों में से चुनाव करना पड़े तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? ओशन। ओशन के पास में, मतलब गोवा जाना रहता है आपका हमेशा? ओके। प्रोफेशनल हनुमंत राव जी और
पर्सनल लाइफ वाले हनुमंत राव जी में क्या अंतर है या कोई अंतर नहीं? बहुत सारे चेंज होता है लाइफ में, जैसे जैसे आप बचपन से बड़ा बन जाते हैं तो आपका इसमें बहुत सारे चेंजेस करना भी जरूरी है और चेंज होना जी। चाहिए, बहुत सारे चेंजेस अपने को करना। अच्छा, अभी तक आपकी जिंदगी में आपको सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली? सबसे अच्छे एडवाइस, सलाह। सलाह जैसे मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद मेरा जो गांव का गुरुजी है उन्होंने बोला तुम सीए करो आगे, तो सबसे बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हुआ वो। जैसे बीकॉम होने के बाद मैं सोचा था कि आगे एमकॉम करूं, नहीं तो मैं अपना खेती में ज्यादा तरफ से मेरा इंटरेस्ट था पहले से। अगर आपको जी 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 बोलिए सर। सीए में आया, दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर आपको अगले ही क्षण किसी नए स्किल को सीखने का वरदान मिले तो वो कौन सा वरदान आप लेना चाहेंगे? कौन सी नई स्किल आप सीखना चाहेंगे? हर एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अपने को ज्यादा तरफ से कैसे नॉलेज ज्यादा मिले उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए अब हम कुछ दर्शकों के भी प्रश्न लेते हैं। मैं ज्यादा लूंगा क्योंकि मेरे को राइटिंग का भी और पढ़ने का ज्यादा शौक है, इसमें हैबिट है जी। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर संतोष येले साहब का, वो ये पूछ रहे हैं हाउ दिस बुक विल हेल्प मी बीइंग ए सैलरीड पर्सन। देखिए इसमें सैलरी पर्सन लोगों के लिए भी उसमें बहुत सारे लिखा हुआ है। जैसे सैलरी पर्सन का जब उनका घर लेने का जो डिसीजंस रहते हैं, वो लोग जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते रहते तो उनका बुक्स में ये एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है आपको कितना लोन लेना चाहिए जी। वो उसमें ज्यादा तरफ से उनको फायदा होगा। टैक्सेशन भी उसमें दिया हुआ है, आपको कैसे आप टैक्सेशन आप उसमें प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी बुक उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, एक क्वेश्चन आया है सर, क्या इस बुक की ई वर्जन भी अवेलेबल हो गई है आज से? ई वर्जन के लिए थोड़ा टाइम, कॉपीज ओके, ई बुक के लिए थोड़ा टाइम है, थोड़ा समय लगने वाला। जी जी जी। एंड एक क्वेश्चन आया है हाउ इज दिस बुक हेल्पफुल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स? कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए किताब कैसे लाभदायक है? ये देखिए जब कॉमर्स स्टूडेंट्स पास होके मेरे पास इंटरव्यू के आता है तो जब वो पढ़ाई करते और जो प्रैक्टिकल, इसमें बहुत सारे फर्क है। जैसे मैंने इंटरव्यू में जैसे उनको सपोज डेप्रिसिएशन का एंट्री मैंने इंटरव्यू में पूछा तो दे कैन नॉट एक्सप्लेन द डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होता है। ये बुक्स उनके लिए प्रैक्टिकल कैसे सोचना चाहिए, इवन नॉट ओनली बीकॉम स्टूडेंट, ये जो सीए बच्चे जब आर्टिकल के लिए फर्स्ट ईयर में जो काम करते हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए एज ए ऑडिटर, एज ए अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए कंप्लायंस पार्टी, हाउ दे डू द अकाउंट्स, ये सब चीजें उसमें लिखा हुआ है। उसके लिए बीकॉम स्टूडेंट को तो बहुत यूजफुल होगा, उनको बहुत जल्दी से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सीए स्टूडेंट जो रहेगा उनका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है, बट ये बुक पढ़ने से उनको बहुत ज्यादा अपडेट्स उसमें मिल सकते हैं जी। अब मेरे सामने स्क्रीन पे काफी ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार के हैं और मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था उनसे भी बातचीत करने का, क्योंकि उनके बगैर आज हमें ये सीए हनुमंत राव देखने को नहीं मिलते। तो मैं बारी बारी से आपके परिवार के उन सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने मॉडरेटर साहब से, महेश जी से, कि हनुमंत जी को जन्म देने वाली जन्मदात्री उनकी माता जी श्रीमती जग देवी जी को हमारे सामने प्लीज स्क्रीन पे दिखाएं। कोई भी चैलेंज को, तो जैसे मैंने लास्ट 2 ईयर से बुक्स राइट करने के लिए चालू किया था, तो उसमें बहुत सारे जीएसटी के लिए बहुत सारे बिजी शेड्यूल हो गया। जैसे मैंने रोज एक पेज लिखने का मैंने डिसाइड किया, सुबह जाके जल्दी जाने का आधा घंटा और एक एटलीस्ट एक पेज तो अपने को लिखना चाहिए डेली। तो मैंने ऐसे करके ऑलमोस्ट 50% बुक्स कंप्लीट किया। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ तो फर्स्ट ऐसे लगा कि अपना मार्च तक अपना लॉकडाउन रहेगा जी। तो बाद में हम लोग 15 दिन तो बच्चों के साथ जो भी खेला ये किया, बाद में 15 दिन के बाद फिर 2 महीने का लॉकडाउन बढ़ा दिया। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया ये बुक्स लिखना बहुत जरूरी है, अभी इसी टाइम पे ये कंप्लीट होगा। ओके, ये चैलेंजेस आपके सामने आई थी। अच्छा हनुमान जी, मैं आपके उस शिक्षक को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपसे शायद 20-30 साल पहले कहा था कि बेटे चूंकि तुम 16 किलोमीटर
स्कूल साइकिल चला के आते हो, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उन शिक्षक का भी नाम आप लीजिए आज के दिन, और हम सभी का प्रणाम उनको जिन्होंने उस समय वो चीज देखी जो दुनिया आज देख रही है। जैसे वही एक दिन बहुत बारिश आ रहा था, तो उधर कैसे बस का फैसिलिटी नहीं था, तो मैंने कॉलेज को साइकिल लेके गया। अपना गांव से अपना जो कॉलेज था हुमनाबाद, वो अराउंड 16 किलोमीटर था। तो आजकल तो साइकिल चलाना एक पैशन बन गया। उस टाइम तो हम लोग रोज साइकिल चला के रोज 16 किलोमीटर कॉलेज को साइकिल लेके जाता था। तो मेरा सर ने बोला कि उस दिन एक ही मैं अकेला था कॉलेज में। सर ने पूछा तुम कितना बच्चे, मैंने बोला अकेला है सर। इतना बारिश आ रही तुम कैसे आया? मैंने बोला सर साइकिल से आ गया। तो उसी दिन मेरा सर ने बताया तू एक दिन सक्सेस बनेगी और सीए करो तुम, उसके लिए आप एलिजिबल है। ऐसे उसी दिन मेरा गुरु जी ने बताया था। आज ही मैं उनसे बात भी किया, उनका आशीर्वाद लिया, बट उन्होंने अभी रिटायरमेंट हुआ होके भी 10 साल हो गया उनका रिटायरमेंट होके। अभी वो गांव में गए, वो बोला मेरा नेटवर्क का इश्यूज है, बट मेरा ब्लेसिंग आपको साथ में कभी भी रहेगा। क्या बात है, ऐसे गुरुओं की वजह से ही ऐसे शिष्य तैयार होते हैं। उस गुरु को भी मैं प्रणाम करता हूं जिसने सीए हनुमंतराव जैसे चौधरी को, जैसे सितारे को उस समय पहचान लिया जब उस पर रफ एजेस थे, और आज तराशा हुआ हीरा हम देख पा रहे हैं उन गुरु जी के आशीर्वचनों की वजह से। थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी। आपकी बात आज हुई थी हनुमान जी से, उन्होंने आपसे आशीर्वाद लिया, आपका बहुत शुक्रिया। और भारत को बनाने में ऐसे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी, एक क्वेश्चन है, अगर 24 घंटे में अगर 1 घंटे ऐड हो जाए, 24 घंटे में अगर 1 घंटे ऐड हो जाए, तो उस आवर में आप क्या काम करना पसंद करेंगे? मैं थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरा प्रायोरिटी चेंज हुआ। पहले हेल्थ कॉन्शियस, पहले प्रायोरिटी हेल्थ को देना चाहिए, बाद में बाकी चीजें। आधा घंटा मैं हेल्थ के काम करूंगा, आधा घंटा पढ़ाई के लिए काम करूंगा। अच्छा, जैसा कि रेणुका जी आपको पूरा सहयोग करती हैं, आपके काम में व्यवधान नहीं पड़ने देती, क्या आप भी उनका सहयोग करते हैं? किचन में कुछ आप भी कमाल दिखाते हैं कभी? एक्चुअली वो मेरे को ऑफिस में हेल्प करती है। मैं कभी, मेरे को चाय भी बनाने के लिए नहीं आते। मेरे बेटी ने बोलती आप चाय तो बनाना सीखो पप्पा, बट नहीं आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बड़ा पाव, उसल और लस्सी, इन तीनों में आप किसका चुनाव करेंगे ब्रेकफास्ट में? लस्सी मेरा ज्यादा फेवरेट है। दे आर फॉर एंटरटेनमेंट, किसी को उसका ये है। तो मेरा तो क्लियर है, मैं क्रिकेट में बहुत फैन हूँ। मैं क्रिकेट 2020 तो मैं बहुत देखता हूँ, एवरी मैच में देखता हूँ जब भी टाइम मिलेगा घर जाने के बाद। बट मेरा ऑब्जर्वेशन वही रहेगा, लास्ट मोमेंट में जो प्रेशर सिचुएशंस रहते, बॉलर कैसे हैंडल करते। अभी एक बॉल में 1 रन आया रहते, तो कहते हैं ना कि होते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। बैकग्राउंड में नेपथ्य में रह के वो जो काम करते हैं, उसकी वजह से ये आयोजन सफल हो पाते हैं। तो देखिए, प्रशांत जी भी हमारे सामने आ गए, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजीव जी को भी कि वो भी स्क्रीन पर आए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इतना शानदार इवेंट, इतना सुंदर दिन हमें नसीब नहीं हो पाता। वेलकम यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग व्हाटएवर यू हैव डन। विदाउट यू इट वाज नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच सर। Thank you. Congratulations, Hanuman sir, and thank you, Gaurav sir. Thank you. Last 8 to 10 days you are So nice, valuable time. Thank you very much. Yes, absolutely. हनुमान जी, जितनी किताब लिखने में आपने मेहनत की है, उसकी मुझे लगता है कि उस प्रोपोर्शन में 20-30% एफर्ट्स इन्होंने बुक लॉन्च में जो है जरूर से लगाया है। Yes, yes. और इनके सहयोग के बगैर तो ये बुक लॉन्च जो है इतने अच्छे तरीके से हो भी नहीं पाता। मुझे आपको जानने का मौका भी नहीं मिल पाता। इतनी अजीम शख्सियत, इतने शानदार व्यक्तित्व के स्वामी से मुलाकात भी मेरी नहीं हो पाती अगर राजीव जी जो है बीच में नहीं होते। तो राजीव जी, आपकी जो आदत है, आपसे जो बन पड़ता है आप सहयोग करते हैं, अपने हर उस साथी को दिल से सहयोग करते हैं। भले साथी जुड़ गया नाम तो फिर आप पीछे हटते नहीं। आप ये नहीं देखते दिन है या रात है। रात में आपको काफी दिक्कत भी आई होगी जहां आप मौजूद हैं। लोग भी ये समझ रहे होंगे भाई कितनी देर क्या कर रहा है ये, अभी इवेंट तो कुछ हो भी नहीं रहा, तब भी क्यों परेशान है। लेकिन आपने उन सभी दिक्कतों को हंसते हंसते जो है स्वीकार किया, क्योंकि आप इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। कितने भी शब्दों में आपकी तारीफ कर लूं वो कम होगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। जस्ट इट्स अ
team effort, sir, and we are all part of the team. And yes, जितना भी है, बस हमें कोशिश करना चाहिए कि जो बन पड़े, जितना बन पड़े उतना करें हम. और इससे अगर मेरा मिशन ही है लाइफ में to bring meaningful difference in people's life who are around me. एंड इसके लिए मैं जो बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना कोशिश करता हूँ. तो बहुत थोड़ा सा योगदान मैं दे पाया. तो मैं हनुमंत राव सर जी ने मौका दिया मुझे इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ. एंड थैंक यू गौरव सर, यू एज वेल, एक्सेप्ट करने के लिए हमारा ये रिक्वेस्ट टू होस्ट दिस इवेंट. जी, आई एम रियली फॉर्चुनेट टू नो यू पीपल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट सर. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू. प्रशांत जी, हम आपसे भी मुलाकात करना चाहते हैं. प्रशांत जी, कहाँ गए थे आप भाई साहब? आपके बगैर तो फिर ये प्रोग्राम अधूरा रह जाता. प्रशांत जी तो पहले लिखने से ही इज हेल्प मी नॉट इन लॉकडाउन, ही इज आल्सो विद अस ड्यूरिंग लॉकडाउन. ओहो, सारे उसमें बहुत मदद की उन्होंने. तो प्रशांत जी, आपने पर्दे के पीछे रह के इतनी शानदार भूमिका निभाई है. जो हमने प्रेजेंटेशन देखा वो आपने ही तैयार किया, मुझे मालूम चला. ये जो चीज आपने सीखी है ना, ये बहुत काम की चीज है. कहते हैं कि जो लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं ना, वास्तव में उनका ही बड़ा योगदान होता है. जो पर्दे पे जो लोग अच्छे दिख रहे होते हैं, उसके पीछे में आप जैसे लोगों का योगदान है. इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और हम सभी को इतना सहयोग किया. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपकी आवाज म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लें. थैंक यू सो मच. जी जी जी. तो प्रशांत, आप क्या कहना चाहेंगे आज हनुमंत राव चौधरी जी को? मेरे मामा बहुत हार्ड वर्कर है. मैं भी उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा हूँ. लॉकडाउन में 3 महीने उनके साथ ही रखा था मैं. अच्छा. मेरा मामा बहुत डेडिकेटेड है. अगर जो काम कल करना है, अगर वो प्लान किए तो वो करके ही छोड़ेंगे बाद में. तो आपने ये चीज इनकलकेट कर ली है अपने मामा जी से सीख कर. या Very good. Wish you all the very best for your future endeavors. And I know you will definitely make your mama proud one day. Yeah. Thank you. चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं उस व्यक्ति को जिसने नॉन स्टॉप सभी दिक्कतों को एक साइड रखकर आज की इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में सारा कुछ झोंक दिया अपना. ये वेबिनार, ये जो लाइव शो है, इसका सफल कंडक्ट होना उसके बगैर संभव नहीं हो पाता. मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नन अदर देन महेश सर को. महेश हाशरमनी, प्लीज हमारे सामने आइए. आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू आनंद जी. क्या बात है. वेलकम, थैंक यू वेरी मच. जितने सौम्यता से, जितनी सरलता से, जितने अच्छे मन से आप दूसरों की मदद करते हैं, अगर भारतवर्ष में ऐसी परंपरा हर जगह शुरू हो जाए तो हर कोई सीए हनुमंत राव जी की तरह किताब लॉन्च कर सकता है और मैनेजमेंट के फंडेज जो है अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है. आपका बहुत शुक्रिया महेश हसरमनी साहब. धन्यवाद गौरव जी. महेश जी एक डिजिटल कंसल्टेंट हैं और फेसबुक पर इनके वीडियोस आए दिन आते रहते हैं और लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त तैयार हो रही है. हम इनसे जानेंगे कि इनका विजन क्या है, ये किस लिए काम कर रहे हैं और आज के दिन ये हनुमंत राव जी को क्या शुभकामनाएं, संदेश देना चाहते हैं. जी महेश जी. गुड थॉट आनंद जी, धन्यवाद आपका. मेरा मेन विजन है, मिशन है कि कम से कम 30 करोड़ लोगों को मदद करना बाय 2020. महेश सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली. थोड़ा लाउड बोलिए आप प्लीज, या पास आके बोलिए. ओके, कैन यू हियर नाउ? यस, बेटर. थैंक यू. यस, मेन विजन है कि बाय 30 करोड़ लोगों को मदद किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले. और ये यूज करना है बाय यूजिंग नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इसका ग्रोथ हो सकता है. जैसे मैंने एक्चुअली आई वाज कनेक्टेड विद सीए हनुमंत राव जी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स. आई गॉट थ्रू BSR सर रेफरेंस से मैं उनसे जुड़ा हूँ. उनको मैंने पर्सनली बहुत बार मिल चुका हूँ. उनका यानी उनका वे ऑफ वर्किंग, उनका थॉट प्रोसेस इतना प्योर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. तो सोचा कि एक्चुअली ये बैकएंड में रहते हैं, तो क्यों नहीं हम इनको फ्रंट एंड में लाए, यानी जिससे और लाखों लोगों को कैसे बेनिफिट हो सकता है. एक्चुअली मेरे माइंड में एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट कैसे हो सकता है. जैसे कि वो इतना बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी
मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। ओके, यानी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ही इज रेडी। स्पेशली अगर आप MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कुछ एरिया अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे यानी हर टाइम पर अलग ही प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन इनका एक बेस्ट ये है कि ये आने वाले प्रॉब्लम यानी फ्यूचर में क्या आ सकते हैं या अभी जो प्रॉब्लम आए हैं उनका सॉल्यूशन टेम्पररी नहीं ढूंढते, परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ C. हनुमंतराव जी। Thank you, sir. Sir, you are most master in technology. You are helped lot for technology. Okay. You are also implemented many technology which helped me to in my CA office. You reduced my manual works. Thank you for that. Thank you very much. Absolutely, absolutely. Every word that you have shared, Hanuman ji, for Mahesh ji is spot on. You are spot on with whatever you have said. क्योंकि महेश जी की एक आदत है, इनको जितना भी कुछ आता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहते हैं कि हर आदमी को एम्पावर करे, चाहे वो गराज में खड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, सबकी जिंदगी आसान हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी से दोस्ती सही ढंग से कर ली जाए तो। और आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, जो भी आदमी अपने आप को इससे दूर बना के रखेगा वो पीछे रह जाएगा, ऐसा महेश जी का मानना है। महेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हनुमान जी जो सोचते हैं वो परमानेंट सोल्यूशन सोचते हैं, एक लंबे विजन वाला व्यक्ति हैं। आज सुबह में इनसे एक चर्चा हुई तो इन्होंने कहा, मैंने पूछा सर किसान की स्थिति अच्छी नहीं है भारतवर्ष में, इन्होंने कहा गौरव जी आप एक बात समझ लीजिए कि आने वाला समय किसानों का समय है और जो व्यक्ति खेती करता है ना वो भाग्य विधाता है, वो अन्नदाता है और उसको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति ये बात समझ गया उसको खेती करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस कंक्रीट के जंगल से जब लोग परेशान हो जाएंगे तो सब खेत की ओर भागेंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। और जो एक 25 रुपए 50 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं लोग, वो 10-10 हजार रुपए किलो, 1-1 लाख रुपए किलो जब मिलेगा तो लोग कहेंगे भैया क्यों हमने खेत बेच दिया। तो इतनी लंबी सोच है उनकी। एक कृषक बैकग्राउंड का व्यक्ति जो CA बनता है और आज भी उसको विश्वास है अपने बैकग्राउंड पर, गर्व है अपने बैकग्राउंड पर, ये कहता है कि देखिए प्रकृति जो है उसका पहिया चलता रहता है, समय का पहिया चलता रहता है, फिर से भारत की ओर पूरी दुनिया मुंह कर रही है, भारत की ओर देख रही है और भारतीयों को सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सस्टेनेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जी, तो ये कहानी है CA हनुमंतराव चौधरी जी की, जिन्होंने बचपन से अभी तक बहुत बुलंदी के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है। कहते हैं ना, हिंदी में एक बहुत बढ़िया शेर है कि अगर फलक को, आसमान को, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो किताब लिखी और अपनी कंसल्टेंसी से लाखों लोगों को लाभान्वित किया। इनका विजन भी यही है कि भारत में जॉब गिवर्स तैयार हों, और इनकी ये जो बुक है नो योर बैलेंस शीट, ना सिर्फ बैलेंस शीट सुधारेगी लोगों का, बल्कि उनकी लाइफ की जो जर्नी है उसको भी खास बना देगी। तो हम सभी इस एक्सपर्टीज के साथ में इतने कम समय में आपने सफल संचालन किया आज के इस प्रोग्राम का, हमारे चीफ गेस्ट को आपने आमंत्रित किया, उनके लिए इतने अच्छे से शब्द कहे आपने और इतनी खूबसूरत शायरियां कही। मैं तो बस भौचक्का रह गया कि भाई देखिए, मतलब हर व्यक्ति में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए बार बार देखिए। CA सुकन्या उसका ही उदाहरण है। थैंक यू गौरव सर। और सर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, मतलब हमेशा से ही, जब से मैं CA बनी हूँ तब से ही ऑलवेज गाइड्स मी in every situation, not only business but also in personal life as well. So congratulations sir once again आपकी बुक लॉन्च के लिए, and I'm really waiting for second book as well because ये बुक तो हिट ही है आपकी। Yeah, Sukanya is our family member, and so that I have a right to give the opportunity to her. And yes, it was great honor for me, sir. Give Sukanya is very good in anchoring. You give her the opportunity. So we discussed and we decided this one. Yeah, she was such a beautiful support to me. It never seemed to me that she is not a professional anchor. She did her part excellently well. Thank you so very much, CA Sukanya. और you are looking damn pretty today. गौरव सर, मैं और एक शेर लास्ट वाला कहना चाहूंगी सर के लिए। जहां हर सर झुक जाए
वहाँ मंदिर होता है। जी जहाँ हर जी। नदी समा जाए वहाँ समुंदर होता है। जिंदगी के कर्म भूमि में युद्ध तो बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता हाय है। हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Sir, Yes, once कन्या, again, congratulations to you. you You are nailed it. inspiration to all of us. और मैं आपको देख You के सक्सेस के पाथ पे चलती हूँ, सर को देख के। Thank you, sir, and congratulations to you once again. Today I have come to realize that what is a true professional all about. क्योंकि आपने behind the scenes रह के ये सारी मेहनत की, आपने इतनी तैयारियां की, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सीए सुकन्या, और मैं चाहूंगा भविष्य में भी आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है ग्रैब करें। यू हैव द पोटेंशियल टू बी अ वंडरफुल एंकर होस्ट ऑफ a show. Thank you, sir. And wish you all the very best. I know you will also make the country proud someday. Excuse me. Thank you, ma'am. गौरव सर, अभी दोस्त वाले हम उनके जी। बधाई देने वाले अभी आए हैं, उन्होंने बधाई दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल Yes. मैम, बधाइयों का तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। Congratulations to you. Thank you so much. All the best. Thank you. ये आपके छोटे साले Congratulations to हैं। you. Thank you so much. Thank you. Wow. मत So पेन many माता। family members are so excited to be here today. और सुदेश जी, बीएसआर सर को भी थैंक यू। Yes, absolutely. अरे, they are the integral part. Without them, it was not possible. Last but not the least, I must admit that the tribe that is called BSR tribe, without the support of some gentlemen, this event was not possible. I would love to invite Mr. Sudesh and our respected Bhupendra Singh Rathore sir to be please accept our invitation to be a part and please be on the screen. We want to thank you sir. Sudesh ji and BSR sir, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज स्क्रीन पर आए। हम आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं सभी लोग। सुदेश जी हैं, उनको प्रमोट कर दीजिए। शायद ही इज बिजी। BSR sir, BSR सर नहीं है। BSR सर नहीं है। Mahesh ji, was there any other program planned for them this time पे 8 o'clock or 8:30 से? नहीं, आज नहीं कुछ। Okay, good. चलिए, And मुझे लगता है कि जितने भी गौरव लोग सर, मौजूद हैं, जी Gaurav sir, before we end, I would like from all team CA Hanumantrao sir, on behalf of Hanumantrao sir and entire team, I would like to pay my sincere gratitude and say thank you to you for hosting this event so wonderfully, and you have been really amazing, and I would say the best like I have ever seen. So thanks a ton. इतने अच्छे से पूरे इवेंट में पूरा इनपुट दे करके, और मुझे पता है कि आपने कितना टाइम दिया है. Like you have taken your time and read whole book to understand, and you have given a lot of time and had done a lot of interaction with CA Hanumantrao sir to understand him, and you have also interacted with different family members to understand about him, what they think about him, and इतना beautifully आपने सर प्रोग्राम को लेके गए from the very beginning till the end. So thanks a ton. You have been amazing. You are awesome. Thank you. Thank you sir. Thank you. I'm really humbled. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा सहयोग आप लोग का मिला है। आपके बगैर तो ये संभव ही नहीं था। मेरी जिंदगी का पहला ऑनलाइन लाइव इवेंट बुक लॉन्च मैंने किया, और उसको इतना सक्सेसफुल बनाने में आप सभी लोगों का योगदान है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये सारा क्रेडिट जो है आपको, महेश जी को, सुकन्या मैडम को, प्रशांत जी को और सीए हनुमान जी को जाता है, जिन्होंने मेरे हिसाब से अपने शेड्यूल को जो है बनाया, और रात हो या दिन हो आप लोग सभी साथ में रहे और इतना सहयोग किया। हनुमान जी ने पूरी अपनी जिंदगी मेरे सामने खोल के रख दी, जिसके लिए मेरे पास में वो शब्द आ पाए जो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। मुझे मालूम नहीं कि मैंने अपने दर्शकों का मनोरंजन किया, उनको एडुकेट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश की, ईमानदार कोशिश। और मुझे उम्मीद है कि हनुमंतराव जी की एक किताब हिंदुस्तान में
वन ऑफ द बेस्ट बुक्स के रूप में रिकॉग्नाइज होगी इस जॉनर में, और लोग कहेंगे कि क्या बात है, बहुत मजा आया। ऐसे ऐसे ब्रिलियंट राइटर के मार्फत ऐसी किताब उनके हाथ में जब पहुंचेगी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सुदेश जी, So, thank you, Gaurav sir, and thank you, Hanumantrao sir, for this book. And I would like to propose 3 cheers to you, Hanumantrao sir. 3 cheers. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hooray! And Gaurav sir, for you as well, thank you. And thanks to all participants, those who are still they are continuing with us. Absolutely, absolutely. Yes. Thank Those you. who are still the part, thanks a ton to each one of you. Just because it was not easy, I know we are doing the program, but you sincerely stayed here till the very end. Thank you so very much to each one of you, because it really matters for us. Because we waited for this day for so long, and today you have really made it so beautiful by giving your valuable time to us. We cannot say enough thank yous to you. Here We is are our having hero. Sudesh We ji. are having Sudesh sir. Yeah. What a Sudesh sir. man. I have been watching full program. It's wonderful. Thank you so much. Congratulations to C. Hanumantrao sir. लास्ट 1 साल से आपसे कनेक्टेड हैं, BSR सर के माध्यम से सभी पूरे टीम को से कनेक्टेड हैं, और सच अ वंडरफुल टीम मैनेजमेंट, वी कैन से सच अ फैंटास्टिक प्रोग्राम. रियली थैंक टू ईच एंड एवरीवन. महेश सर, गौरव सर, सुकन्या मैम, राजीव सर एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. पूरा प्रोग्राम बहुत वंडरफुल रहा, और सर आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष ऑन बिहाफ ऑफ फुल टीम BSR. आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बुक बेस्ट सेलर, अमेजन बेस्ट सेलर में भी आए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. कांग्रेचुलेशन सर. सुदेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जब राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे जी, तो राम जी को एक रथ भेजा गया था स्वर्ग से. अगर वो रथ नहीं मिलता और वो रथ पे जो वो नहीं मिलता, जिसको क्या बोलते हैं, सारथी, वो नहीं होता, तो राम जी रावण को मारना बहुत मुश्किल हो जाता. आपने तो हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स को किल कर दिया आपके सहयोग से. आपने यू हैव प्लेड सच ए प्रोमिनेंट रोल एंड विदाउट अ फस. आप बहुत पेशेंटली पूरे ड्राई रन के दौरान मौजूद रहे. आपने एक एक चीज आपने शेयर की. BSR सर के रिसोर्सेस को हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में यूज किया. आपका तहे दिल से शुक्रिया. आपके बगैर भी ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा. Thank you so much, sir. Indeed, Sudesh sir, infrastructure was the key, played a key role, and you were very humble and kind enough to provide us with the infrastructure support, without which this program wouldn't have been possible. So thank you to you, BSR sir, and the entire team. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wish you all the best. Entire team, you rock. We all rock. We all rock. एक सभी एक फोटो लेने एक फोटो लेने वाले हैं सभी लोग. थम्स अप, स्माइल, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे. ओके, तो सभी लोग अगर अपना वीडियो ऑन करें तो दैट वुड बी अमेजिंग. ओके, या 1 2 and 3. या यस, थैंक यू. And thank you to all the family members. आपके प्रेजेंस से इस प्रोग्राम के 4 चांद लग गए. आपने जो भी योगदान दिया है उसके लिए हमारे साथ में सी हनुमंतराव जी मौजूद हैं. तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयां पूरे परिवार को, और भगवान करे ऐसे दिन हमको जल्दी देखने का मौका मिले, और सीए सुकन्या की भी किताब जो जल्दी से लॉन्च हो और हम लोग उसको भी जो है मिलकर सेलिब्रेट करें. Definitely, I try. Yes. ठीक है. अब it's time to call it a day. It was such a wonderful event. Congratulations to each one of you. I'm really amazed कि इतना सारा कुछ अपने घर पे रह के टेक्नोलॉजी की मदद से और लोगों के सहयोग से आज के दुनिया में संभव है. इतने अच्छे इवेंट को होस्ट करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत फक्र हो रहा है. कुछ गलतियां हुई होंगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा. मैंने अपनी कोशिश की, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो वेरी मच. गुड नाइट. Good night. Thank you. Have a all good. Thank you everyone. Thank you all participant and all organizers. Thank you so much. Sudesh ji, any option to end the meeting for only participants?
आपका ऑडियो म्यूटेड है. End for all. You can end for all. Okay, please. Yes. So, yes, maybe management team we can discuss on the WhatsApp group. Reconnect once again. You can. Okay. Okay. Yes. So let me. Should I disconnect and reconnect, or we can continue? So we can disconnect basically. Disconnect and then rejoin. There's We'll no. meet on WhatsApp, na? This will. No, I would propose we would disconnect and then rejoin back here immediately. Okay. Yeah. Okay. Yes. Okay. So thank you all the participants. Tahidal से आप सभी का शुक्रिया. Thank you. Without you, this event also wouldn't have been possible. So thanks Satyam to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. सुदेश जी आपको शायद ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना. हाँ, I will answer. प्लीज. थैंक यू. थैंक यू.